Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello and a very good morning, ladies and gentlemen. A very warm to this absolutely wonderful and auspicious day that bring us together. So many special people like you. We roll down a carpet of welcome on the occasion of National Unity Day. Before going towards our program, I, Priyanka Tiwari, would like to thank our Honorable Chairman, Dr. S.P. Singh Sir, Honorable Advisor, Mr. Madan Mohan Shah Sir, Honorable Director, Mr. Ranjit Kumar Sir, respected Principal, Dr. D.N. Singh Sir, and our school principal, Mr. Uday Mukherjee Sir, and all the dignitaries who have present in this Lord Buddha Auditorium. We all are here for the grand celebration of National Unity Day on behalf of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel, the most eminent and prominent figure who have given the identity and a beautiful shape to our country. I am very proud to share with you all that the world's tallest statue, the Statue of Unity, is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel for before pivotal role in unifying and creating our country. He used his strength and determination to bring us together, many Indian princely states, to form one united country, which all know as India. He not only integrated boundaries but also people, customs, cultures, traditions, and languages. Many thanks to Iron Man of India. Now it's time for lamp lighting. Deepam Jyoti Parabrahma, Deepam Jyoti Janardana, Deepin Hartu Papam, Sandhya Deepam Namostute. Ladies and gentlemen, जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमारे ईश्वर के नाम के साथ की जाती है. Ladies and gentlemen, before we begin anything auspicious, we always light the auspicious lamp. I would like to invite Honorable Chairman Sir, Advisor Sir, Director Sir, Principal Sir, our school principal sir, and all the dignitaries to kindly light the auspicious lamp. तो आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर. Thank you so much, sir, for your precious time for all of this. खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. Now, going towards our program, there is a speech contest on Sardar Vallabhbhai Patel on National Unity Day. Now, I would like to call Mr. Anurag Singh
from B.Ed first year. Give a big round of applause for Mr. Anurag. A very good and warm morning to everyone assembled here. I am Anurag Kumar Singh, B.Ed first year student. Welcome you, Honorable Chairman Sir, Director Sir, Advisor Sir, and our Principal Sir, and respected our facilitators, and School Principal Sir, Udyan Mukherjee Sir. We all are gathered here to celebrate National Unity Day. The National Unity Day was started from 2014 by Indian government. National Unity Day is celebrated 31st of October every year on the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel to remember his works and pay tribute to him. After independence, the integration of more than 565 princely states was the biggest problem. But 552 princely states were included by Sardar Vallabhbhai Patel in Indian Union on the basis of three subjects: security, foreign policy, and communication system. The National Unity Day comes with the message of unity and integrity. Sardar Vallabhbhai Patel will always remain the symbol of unity with his achievement and inspire us a lot. National Unity Day is all about having a sense of unity with the people of our country. Thank you very much. Have a nice day. Thank you so much, Anurag. Now I would like to request Mr. Sachin to come and say a few words on Honorable Chairman Sir, Advisor Sir, respected Director Sir, Principal Sir, respected फैकल्टीज और मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आज हम सब 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल नवीन भारत के निर्माता थे, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के बेजोड़ शिल्पी थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की एकजुटता में पुरजोर तरीके से पूरी मजबूती के साथ काम किया। देश के एकीकरण में कई चुनौतियां सामने आई और सरदार पटेल ने लाजवाब कौशल और निष्ठा के साथ इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। इनके मार्गदर्शन और सशक्त निश्चय से छोटे बड़े 552 देशी रियासतें भारतीय संघ में एकीकृत होकर एक भारत का निर्माण किया। इन रियासतों में 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर रियासत भारतीय संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण जूनागढ़ भी भारत का अटूट अंग बना। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को ही बलपूर्वक भारतीय संघ में शामिल किया। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार सभी रियासतों को सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता और नेतृत्व से भारतीय संघ में एकीकृत किया। आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक और हिमालय से महासागर तक हर तरफ तिरंगा देख रहे हैं। इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। भारत को एक विशाल राष्ट्र और अखंडित राष्ट्र बनाने में उनका पूरा उल्लेखनीय योगदान और अतुलनीय योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार। Thank you so much, Sachin. Now it's time to invite Mr. Ravi Ranjan. Give a big round of applause for Mr. Ravi Ranjan. Good morning, all of you. सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं आप सबके बीच कुछ रखना चाहता हूँ।
सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय इतिहास के लौह पुरुष और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर और राष्ट्रीय एकता दिवस पर उपस्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के हमारे माननीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, एडवाइजर सर एंड ऑल टीचर्स को मैं रविरंजन मिश्रा बीएड सत्र 2019-21 का छात्र आप सभी को सत सत नमन करता हूं और अपने सभी छात्र अध्यापक को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकीकरण में उनके योगदान की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंतरिक इच्छा देश के लिए कुछ करना चाहती थी और इसलिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और वे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा भारतीय सशस्त्र बल के प्रमुख हुए और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक वहीं देश के लिए सेवा करते रहे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारत को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया, जिसमें उड़ीसा से 23, नागपुर से 38, कटियावाड़ा से 250 तथा मुंबई पंजाब जैसे 562 रियासतों को भारत में मिलाया। स्पीच देते समय कृपया ध्यान दें कि आपके पास एक टाइम लिमिट है 2 मिनट का, उसी में आपको अपनी पूरी स्पीच देनी है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रविंद्र फ्रॉम B8 फर्स्ट ईयर। Respected Chairman Sir, respected Advisor Sir, respected Director Sir, Principal Sir, and all faculties of Dr. S.P. Singh, Teacher and Education. Today I have got an opportunity to say something about National Unity Day. Please excuse me my mistakes because I am in learning stage. As we know, today is 31st of October. On this day, the greatest freedom fighter and an Iron Man and greatest politician of India, Sardar Vallabhbhai Patel, was born in 1875 in Gujarat. He was properly known as Unity, entire the nation. So we are celebrating National Unity Day every year all over India. National Unity Day is properly known as Rashtriya Ekta Divas. The thought of Sardar Vallabhbhai Patel is manpower without unity is not a strength unless it is harmonious and united properly, then it's become a spiritual power. That's all about National Unity Day. Thank you. Now I would like to call Priyanka Tiwari, B.Ed first year. Hello everyone, myself Priyanka Tiwari. Today I am blessed to be here and to talk about my constant source of inspiration, who is none other than Sardar Vallabhbhai Patel. Imagine what would have happened if our country would not have integrated from more than 500 princely states to one united country, India.
Today, all of us would have scattered in small princely state and our India would have strange and odd map. But all thanks to Sardar Vallabhbhai Patel, who gave the identity and a beautiful shape to our Bharat today we all lived in. Sardar Vallabhbhai Patel, the most eminent and prominent figure in India's freedom struggle, was born on 31st October 1875 in Gujarat. His real name is Vallabhbhai Javir Bhai Patel. Later, people started calling him Sardar because of his strong and leadership quality. His initial movement started with Satyagraha Quit India movement. After independence, he served as India's first Prime Minister, India's first Home Minister and Deputy Prime Minister. Today, I am very proud to share with you all that the world's tallest statue, the Statue of Unity, is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel because he played a pivotal role in unifying and creating our country. Hats off to Sardar Vallabhbhai Patel. Many thanks to Iron Man of India. Unfortunately, on 1950, he died after suffering from massive heart attack in Bombay. I would like to conclude by saying the entire life of Vallabhbhai Patel is inspiration for all of us. His strength and determination to bring together many Indian princely states to form united country India. No doubt he is a role model for all of us. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Priyanka. Now I would like to invite Mrs. Sunita Shah, B.Ed first year student. Please big round of applause for Sunita. धन्यवाद। आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय एडवाइजर सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और सभी यहाँ उपस्थित अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठीगण, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपना कुछ चंद बातें आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत में हुआ था। जो लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी काम किए थे और देश की एकता के स्वर में सबसे ज़्यादा बुलंद स्वतंत्रता की सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल उस सदी के होते हुए भी आज के युवा के जैसा नई सोच रखने वाले थे और वो सदैव देश को एकता के संदेश दिया करते थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्म अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस को पूरे भारत में मनाया जाता है। धन्यवाद। Thank you very much, Sunita. Now I would like to call Ankita, JNET second year. I would like to request our judges. Her name is not in the list, so please add her name. Thank you, sir. Honorable dignitaries, respected teachers, all staff members and my dear friends, a very good morning to all of you. My name is Ankita and I am a student of DLED second year. Right now I am feeling very fortunate to have this opportunity to speak some words in front of you all. So thank you for giving me the chance. So friends, it is the same day when in 1875 Sardar Vallabh Bhai Patel was born and he born in a Gujar family. Patel worked vigorously for the solidarity of India after freedom, which leads to the emergence of a new nation. Lots of challenges were there, but he tried and finally he tied the whole country in a thread. This is the reason that on his birth anniversary we celebrate this day as National Unity Day. Unity, it means mutual feeling of happiness and sorrow both. Unity is basically emotion integration. Friends, Sardar Vallabh Bhai Patel was the one who inspired by Mahatma Gandhi and he started this campaign. On the same day, currently on the same day in 2019, our government unveiled his statue in his memory. So it is the world's tallest statue, which is going to be known as the Statue of Unity.
Where there is talk of unity, definitely Sardar Vallabhbhai Patel is remembered. So it will be the great tribute if we understand that unity is strength. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Ankita. Now, I would like to thank our college, Dr. S.P. Singh College of Teacher Education, for organizing speech contest on National Unity Day on behalf of Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you so much, sir. तो चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, दैट इज फैंसी ड्रेस शो। अब हम आपको भारत के उन महान आत्माओं से अवगत कराते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया। तो आइए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तालियों में कंजूसी ना करें। नाउ बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। Now, Iron Man of India, none other than Sardar Vallabhbhai Patel. Now it's time to invite our first President of India, Dr. Rajendra Prasad. Now, Bharat Kokila, the Nightingale of India, none other than Sarojini Naidu. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you so much for this fancy show, fancy dress show. कृपया तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Now, I request the person who neither cares about day and night. He is none other than our chairman, sir. So please, we are. हमारे सभी प्रिंसिपल्स, बीएड कॉलेज के, स्कूल के, आईटीआई के, मदन बाबू मेरे सहयोगी, डायरेक्टर साहब, विद्यार्थियों, आज
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन को हम लोग यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। यूनिटी डे के रूप में मनाने का उद्देश्य तो जो है, इन्होंने भारत को बहुत सारे राज्यों में डिवाइडेड स्टेट्स को एक किया था। एक स्टेज पर जैसे आज इंडिया है बदला था। उस अवसर को लेकर के हम उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। उसमें से 2 स्टेट कहने लगे कि हम अलग रहेंगे। उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेटम दिया, इसमें मद्रास था, और एक तो हमारे ही अपने लोगों के वजह से आज सिर दर्द बना हुआ है, जेके, और पता नहीं कितना दिन तक यह सिर दर्द रहेगा। ये नेशनल यूनिटी डे का उत्सव हमें यह जानकारी देता है कि जब इच्छा प्रबल हो और अपने में दृढ़ विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी किसी ने बतलाया था कि 560-64 से अधिक स्टेट थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, और एक ऑर्डर में भले ही थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ा, सभी को नतमस्तक होकर भारत के एक राज्य के अधीन आना पड़ा। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना पूर्ण विश्वास अपने में था कि हम एक कर डालेंगे। उन्होंने कर दिया। विश्वास के साथ उन्होंने इस काम को किया। संभव था, कैसे मैंने कहा है कि एक थोड़ी सी गलती, एक की गलती से वजह से आज जो एक जेके पता नहीं कब तक सिर दर्द रहेगा हम लोगों का, और भारत को कितना कमज़ोर किया है। आज भारत यदि डेवलप अन्य स्टेट के जैसा करते रहता तो निश्चित रूप से एक डेवलप्ड देश हो गया रहता। एक थोड़ी सी परेशानी हम लोगों को काफ़ी पीछे खींची हुई है। हमें ऐसी गलतियों के तरफ ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से गलती भविष्य में नहीं होने देना चाहिए। उसको सुधारने की ज़रूरत है। हमें अपनी यूनिटी बनाए रखने की ज़रूरत है। देश के यूनिटी ही नहीं, अपने जहाँ है वहाँ की भी यूनिटी की ज़रूरत है। और अपने दृढ़ विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों से सबको साथ लेकर के, साथ चल करके हम अपने इस यूनिटी को दिखला सकते हैं कि हम भी यूनाइटेड हैं। क्योंकि किसी न किसी का जब जन्म दिवस मनाया जाता है, उसके विचारों को अपने जीवन में लाना ही उद्देश्य होता है। यह नहीं कि उनके बातों को कह दिए, क्या किए, सुन लिए, हो गया, इतना ही तक नहीं होता है। उद्देश्य है कि उनके विचारों को अपने जीवन में ला करके आप अपने स्वयं को उच्च विचार वाला बनावें। यही उद्देश्य होता है। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your precious work. Now I welcome you again. I recall some quotes. The problem is not the problem. The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. एक और शायरी कहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर चलेंगे।
विविधता में एकता, विविधता में एकता किताबों के पन्नों में लिखा रह गया। विविधता में एकता किताबों के पन्नों में लिखा रह गया। भारत देश धर्म, देश और जाति के बाजारों में सस्ता सा बिकता रह गया। Now, I would like to invite our respected principal sir, Dr. D.N. Singh sir, to address and narrate the musical skit program. Please, a big round of applause for our principal sir. Thank you, Anurag. Dear countrymen, a very pleasant good morning to one and all. Today, 31st October, is very important in the history of modern India. It is also the day when Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, was born. Of course, we know that who put the strong foundation of modern India. That's why sometimes he is called Bismarck of India too. सज्जनों, प्रस्तुत है डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के बच्चों के द्वारा एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति। बात उन दिनों की है जब भारत को आज़ादी मिली थी और देश भर में मौजूद छोटी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोकर भारतीय संघ को एक मजबूत बनाना था, भारतीय संघ का एक अटूट हिस्सा बनाना था। और इस कठिन कार्य को पूरा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनके जन्मदिन को आज समस्त देशवासी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। सरदार पटेल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने सेक्रेटरी बीपी मेनन आदि लोगों के साथ आपसी मंत्रणा करते हैं कि किस प्रकार से देश की छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। तो आइए देखते हैं उनकी आपस की मंत्रणा कैसे चल रही है। इस कार्य को मुख्य रूप से सरदार पटेल ने पूरा किया, लेकिन उनके इस कार्य को पूरा करने में सबसे ज़्यादा सहयोग गृह मंत्रालय के तत्कालीन जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, मिस्टर बीपी मेनन, उन्होंने किया, उनका सहयोग दिया। इसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू जी और गांधी जी सभी लोगों ने उनके इस कार्य को पूरा करने में सहयोग दिया और उनकी आपसी मंत्रणा पूरी होती है और फिर उसके बाद सरदार पटेल आगे की कार्यवाही करने के लिए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मजबूत भारतीय संघ की स्थापना के लिए, एक मजबूत भारतीय संघ की स्थापना के लिए सरदार पटेल सभी देशी रियासतों को एकीकृत करने के लिए अपील करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं भारत का गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी छोटी बड़ी रियासतों को आमंत्रित करता हूँ, शामिल करना चाहता हूँ अपने भारत की एकीकरण के लिए। आप लोग इन एकीकरण में भाग लेकर हमारे भारत देश को एक विशाल राष्ट्र के रूप में बनाएं। आइए आपका स्वागत। आइए जूनागढ़ की शासक आपका भारत के एकीकरण में आपका स्वागत है। आइए आप भी इस भारत एकीकरण में शामिल होइएगा, इसी में आपका भलाई है। आइए
हैदराबाद के रियासत आपका भी इस भारत के एकीकरण में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, जम्मू कश्मीर की रियासत आप इस भारत के एकीकरण में शामिल होने पर आपका ही भलाई है। आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आपने देखा कि सरदार पटेल सभी रियासतों को अपने कुशल नेतृत्व से धीरे धीरे भारतीय एकता के सूत्र में बांध देते हैं और एक सशक्त भारतीय संघ का निर्माण करने में सफल होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सरदार पटेल अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन सज्जनों, आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही है कि भारतीय संघ में बिखराव के लक्षण नज़र आने लगे हैं। हमें डर लगने लगा है, अगर हम समय रहते नहीं सचेत हुए तो भविष्य में हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहीं पर आवाज़ आती है जय महाराष्ट्र, किसी कोने से आवाज़ आती है जय तेलंगाना, कोई कहता है कि हिंदी सर्वोच्च भाषा है, उत्कृष्ट भाषा है, कोई कहता है कि पंजाबी उत्कृष्ट भाषा है, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैश्य हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं दलित हूँ। और इस सबसे भी बड़ी बात है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य, भारतीय अखंडता कहीं न कहीं खतरे में है और हमें समय रहते सजग रहना चाहिए, नहीं तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं सज्जनों कि किस प्रकार भारतीय समाज में शुरुआत से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से रहते थे और वक्त ने करवट ली, समय बदलता गया। आपसी प्यार, सद्भाव, सौहार्द धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों में तब्दील होती गई और झगड़े का कारण बनती गई। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन उन ताकतों में राजनीति एक प्रमुख ताकत है। जो राजनीति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जनमानस का नरसंहार भी कर सकते हैं। समय के साथ आपसी भेदभाव में कमी आती रही, कमी आती गई और छोटी छोटी बातों से आपसी मनमुटाव बढ़ता गया और झगड़े में तब्दील हो गई। इसका फ़ायदा उठाने के लिए राजनीति हमेशा तत्पर रहती है और राजनीति इसका फ़ायदा ज़रूर लेते हैं। हेलो, हाँ नेताजी, क्या काम है? बोलिए। दादा
फैलाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा, आपको विश्वास नहीं है? आकर खुद अपने आंखों से देख लीजिए कैसे लंका फैला रहा है। और मेरा इनाम भी लेते आइए, ठीक है। नेताजी देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को मार कर गिरा दीजिए। अब मेरा इनाम दीजिए। इनाम चाहिए? हाँ, आपने मेरे साथ धोखा कर दिए। राजनीति में ऐसा ही होता रहा था। लेकिन नेताजी, आपने अपनों की भी जान ली है। अरे मेरे बचपन का दोस्त, मैंने क्या करवा दिया? मैंने तो अपने ही दोस्त का जान ले लिया। नेताजी, दिल का दौरा पड़ने से स्वर्ग सिधार जाते हैं। घूमते उधर से पीछे से। आगे बढ़ के घूमते रविंदर बीच में आके बोलो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हमारे बच्चों ने एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति करी है। वक्त की कमी में फिर भी उन्होंने पूरा करने का पूरा कोशिश किया है। धन्यवाद। नाउ मिस्टर अनुराग
And Priyanka, please have your stage. Wow, wow, wow. What a great act. Thank you so much, sir, for directing the musical skit. It's really well directed by our principal, sir. सारी उंगलियां समेटो तो मुट्ठी बन जाती है, सारी उंगलियां समेटो तो मुट्ठी बन जाती है, यही एकता की निशानी कहलाती है। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान, अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। Now I would like to invite our honorable advisor sir, Mr. Madan Mohan sir, to address the audience. Please a big round of applause for our honorable advisor sir, Mr. Madan Mohan sir. Our foresighted and creative director, principals, Dr. S.P. Singh B.Ed College, R.J. Vidyapeeth and ITI, and our teachers, students, on the very occasion of birth anniversary of Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister as well as the Deputy Prime Minister of India. Today we are celebrating the birth anniversary of him. On this occasion, I pay my heartiest homage to him. At the same time, my thanks to the students for their inspiring presentation at the dais. Thank you very much. सचमुच एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। आप नीचे पढ़ रहे हैं पटेल की पंक्ति, मैन पावर विदाउट यूनिटी is not a strength unless it is harmonized and united properly. Harmonized and united properly, ये बहुत बड़ी बात है और सरदार पटेल ने सचमुच प्रॉपरली यूनिटी इस देश में ले आने का काम किया। कितने देसी राजवाड़े थे, उन सबों का यूनिफिकेशन करके भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अपने आप में यह बेमिसाल है। अगर उनकी बात चली होती तो कश्मीर कब का हमारा हो गया होता। जम्मू कश्मीर जहाँ 370 धारा थी, वो कब की भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा पा चुकी होती। लेकिन आज के दिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अमित भाई शाह को, जिन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी के सौजन्य से 370 धारा और इसकी अन्य उपधाराओं को समाप्त करके सरदार पटेल की इच्छा को पूरा कर दिया। और यह सचमुच स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली बात है देश के इतिहास में। लेकिन कोढ़ में खाज की तरह गिलगिट और बाल्टिस्तान अभी भी हमारे कब्जे में नहीं है, जिसको पीओके कहते हैं। और हम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि वह हमारा था तो फिर से हमारा रहे, ऐसा संयोग बने, ऐसी ताकत इस देश के नौजवानों में, जनता में, लोगों में पैदा हो और वह हमारा था हमारा हो जाए। सचमुच यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है बंधुओं। एक तिनके की क्या बिसात है, लेकिन जब वह संगठित होकर के रस्सी और रस्से के रूप में परिणत होती है तो बड़े बड़े गजराज भी उसको तोड़ नहीं पाते। नन्ही चिट्ठी की क्या बिसात है,
लेकिन जब वह संगठित हो जाती है तब बड़े बड़े विषधर भी मात खा जाते हैं। इसलिए अनेकता में एकता तो इस देश की खूबी है। यहाँ अनेकता है, लेकिन समय आने पर सभी एक हो जाते हैं, और यही एकता का भाव इस देश में है, वही इस देश को जिंदा रखे हुए है, जिंदा रखेगा। लेकिन नेताओं से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए देश को एक रहने देना नहीं चाहते। हम जनता को सावधान रहना होगा, तभी हमारे देश की रक्षा होगी, देश की एकता की रक्षा होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विभिन्नताओं में भी हम विकास का, उन्नति का चिराग जलाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको कोटिशः धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspirational and motivational thoughts. ना वो हिंदू लिखेगा, ना मुसलमान लिखेगा, ना वो हिंदू लिखेगा, ना वो मुसलमान लिखेगा, हमेशा एकता का गीत हर जवान लिखेगा। धर्म भाषा मजहब में तो हमने बांटा है, धर्म भाषा मजहब में तो हमने बांटा है, बहेगा खून सरहद पे तो हिंदुस्तान लिखेगा। Now I would like to call or invite our school principal sir, Mr. Udyan Mukherjee sir, to address the audience. Please, a big round of applause for principal sir. Good morning, ladies and gentlemen. Namaskar. This is a momentous occasion. Momentous not because we are celebrating a day, not because we are celebrating something called unity. This is momentous because this particular day, the National Unity Day, is one of those very rare occasions which forces us to think. ये ऐसा एक ऐसा मौका है जो कि हमें फोर्स करता है कि हम सोचें, हम चिंतन करें। अब आप पूछिएगा कि किस बात पर चिंतन? इस बात पर चिंतन हम लोग करें कि ये एकता का जो एक भाव है, एकता एक भावना है। जैसा कि एडवाइजर सर ने बताया, एक भावना है, एक भाव है। हमारे मन में ये अपने आप उत्पन्न ये भाव होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये एकता की भावना जो है ये खंडित हो गया है। It has disintegrated. What we need to do today is to put those disintegrated parts together and make it one whole. जब वो एकत्र हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तभी हम यूनिटी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और जब हम यूनिटी के बारे में सोचें, आप खुद सोचिए, डायरेक्टर सर often refers to macro level and micro level. हमारे जैसे आम इंसान जो हैं वो ज्यादातर माइक्रो लेवल पे जीते हैं। अगर माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक हमें ट्रैवल करना है, अगर हमें जाना है, तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, रास्ते पे कोई इंजर्ड पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट में कोई पड़ा हुआ है रास्ते पर, कितने लोग हैं जो रुक कर उन लोगों को, मतलब जो इंजर्ड हुए हैं, उनको लेकर अस्पताल पहुंचा देंगे? कितने लोग हैं? कहने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन करने के लिए बहुत बहुत कम लोग हैं। और अगर हमें ये भावना हमारे मन में आती है कि उस इंजर्ड आदमी को लेकर हम अस्पताल पहुंचा दें, isn't that unity? वो अपने आप में एक यूनिटी है। अगर कोई शिक्षक, आप लोग यहां कई स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अगर कोई शिक्षक दूसरे शिक्षक को अगर देखे कि कोई गलत कदम उठा रहा है और उसे आगाह करता है कि आप ऐसा काम न करें, that, ladies and gentlemen, is unity. एक
स्टूडेंट, एक विद्यार्थी देखता है कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो क्लास में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और उसे आगाह करता है, दैट इज यूनिटी। तो ये छोटी छोटी बातों से हमें यूनिटी का पता चलता है, हमें एकता का पता चलता है। और इन्हीं चीजों को हम लोग अपने आप अगर अपने अंदर इन चीजों को उत्पन्न करें और उन्हें प्रकट करें, if we implement these thoughts, these little thoughts, which are scattered all over inside us, within us, then I think we will reach a particular destination where the true meaning of national unity will be revealed. So thank you very much. It was a wonderful occasion. You people gave beautiful presentations. In fact, my heartfelt gratitude and, of course, my congratulations to Dr. D.N. Singh, sir. I did not know his creative edge. This is the first time I saw this. And it was wonderful. It was really, really wonderful. And he was telling me yesterday, this is something very significant. He was telling me that he prepared it in a matter of a few hours. What was presented here on stage could possibly take many days, which he presented in a matter of a few hours. That, I think, really, really needs an applause. Thank you for that, Dr. D.N. Singh, sir. So thank you. Thanks, all of you. Thank you, Director, sir, Advisor, sir, teachers, students, and ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your motivational speech. Now, I handed over the stage to our co-host, Ms. Priyanka. Thank you, everyone. थैंक यू अनुराग। तो चलिए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। किसका है आपको इंतज़ार? चेहरों पर है खुशी मगर पलकों पर है किसी ऐसे कार्यक्रम का इंतज़ार जो मचा दे धूम और बढ़ा दे प्रोग्राम की शान। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारा माइम एक्ट है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माइम एक्ट का। What a performance it is. Fabulous and amazing performance. I am short of words to describe how enthusiastic and energetic performance. It was just brilliant. It helped us in this difficult and challenging situation, COVID-19. Give a big round of applause for Mr. Saurabh.
Now, I would like to call a very energetic, a very passionate and a very dynamic person, our adorable Director Sir, for his valuable words. Give a big round of applause for our Director Sir. Good morning everyone. So आज 3 बहुत important day. First one is today is the birthday of Mahasi Valmiki. So Mahasi Valmiki जी का भी आज जन्मदिन है, जो आपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. और तीसरा दिन है यूनिटी डे. सेपरेटली देखने की जरूरत है. रात में करीब 3 बजे मैं बहुत उदास था, तो मेरा बेटा था अगले कमरे से उठ के आया और फिर बातें करने लगा जैसे. मैंने कहा कल चलेगा फंक्शन है. बोला क्या है? मैंने कहा कि आयरन मैन का बर्थडे. बोला वेरी गुड, तो मैं जरूर चलूंगा आयरन मैन. और हम लोग आएंगे और आयरन मैन की सारी सीरीज वाली मूवी देखेंगे. तो आयरन मैन का सीरीज आप लोगों को बताऊंगा, हॉलीवुड की मूवी है. सो ही वाज नॉट अवेयर अबाउट वेयर सीरीज. सो आयरन मैन इज वेरी फेमस सीरीज, आपको पसंद है जैसे अदर सीरीज भी होते हैं. तो उसको ये नहीं पता है कि आयरन मैन कौन है, ही इज सेलर. नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम सीरियस पॉइंट हियर. 7th क्लास के आज के बच्चे को हिस्ट्री में ये नहीं पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉ कोर्स में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में. और शायद ये इसलिए भी है कि हमारे आज के शिक्षक को जो कह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने इतिहास के बारे में पता है. ऐसे वो तो पढ़ता है दिल्ली में, लेकिन बिहार में और भी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर कि सारा एजुकेशन का फोकस जो है, पहला फोकस जाता है मैथमेटिक्स, दूसरा साइंस, तीसरा इंग्लिश और बाकी चीज़ों में रह जाता है. मैं देर से भी बात करता है हिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. उसके अंदर आप सोशल साइंस पढ़ते हो या इतिहास पढ़ते हो, कोई योगी है पढ़ो. आज अगर हम देखें यहाँ पे लाइन में ऑलरेडी बता ही रहते हैं, आप ऑनलाइन में एक वर्ड है प्रॉपर्टी. आज कितने लोगों ने, आप लोगों में से कॉलेज का फेसबुक पेज देखा है? यूनिटी डे का एक बैनर है इसके ऊपर, और जो बैनर बनाती है एक घुमाना है बैंगलोर में, उसमें परसों के लिए था बना करके. तो मैंने कहा नहीं, आप सरदार वल्लभ भाई का फोटो हटा दीजिए उससे और आप यूनिटी से रिलेटेड चीजें डालिए. उसमें डालिए आप देखेंगे मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजन के ग्रोथ का एक बना हुआ है वहाँ पे. बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गांधी जी को, नेहरू जी को आज के संदर्भ में इसके अराउंड पॉलिटिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है. आप अगर इतने अच्छे पर्सनालिटी को बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं तो लोग आपको महसूस करते हैं. आप नेहरू जी के को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं तो आपको कांग्रेसी बोलना लोग शुरू कर देते हैं. इसी तरह से अगर गांधी जी को सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं तो उसमें लगता है क्या कि आप जो है ना तो कांग्रेस में नहीं है, आप अपने मकसद से गांधी जी का यूज करना शुरू कर दिया. तो इस चीज के ऊपर जो खास के जो आप लोग बोलते हैं बिजनेस, क्या बोलते हैं हिंदी में, ये बिजनेस, शिक्षक क्या बोलते हैं, छात्रा, हाँ जो भी है. सो आप आधे शिक्षक अपने आप को मानिए. इस चीज को बहुत ध्यान में रखें कि अब आप फ्यूचर में आप लोगों से बहुत एसएसटी पढ़ाएंगे, क्वालिटी पढ़ाएंगे, बहुत केयरफुल क्वालिटी पढ़ाने की जरूरत है. एक इसका भी जितना ज़्यादा जागता उदाहरण फ्रांस है, जहाँ पे भी क्वालिटी पढ़ाई जाती थी और पैगंबर की कुछ पुराने काल जहाँ पे ऑलरेडी फॉलो हो चुके हैं, जस्ट एज अ रेफरेंस के लिए यूज किया गया. उसका कोई खास मकसद नहीं था, बट उस टीचर को अपना जान गंवानी पड़ी है, उसके आगे भी जाना पड़ा है. सो एकदम इंटॉलरेंस है. जब आप एजुकेशन में भी आप जो है क्रॉप का यूज कर रहे हैं, किसी चीज का यूज कर रहे हैं, इतिहास में जा करके हमें पता है कि राजा था, उनके अपनी बेटी का संबंध है, इतिहास किसको नहीं छोड़ता है. मुगल साम्राज्य में ऐसा हुआ, उसकी बेटी के साथ शारीरिक रिश्ता था, इतिहास लिखा है.
इतिहास किसी को नहीं छोड़ता कहीं। ये मत सोचिए कि अभी के समय में इसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे चीज को, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कि आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, यूनिटी जब भी वर्ड आता है इसके साथ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी साथ साथ चलते हैं। जब तक यूनिटी विद द डाइवर्सिटी पॉसिबल है, आप सामने कि हम अकेला एक्टिविटी आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो नहीं, उसमें फिर यूनिटी की कौन सी बात है। मल्टीपल डाइवर्सिटी आप इंडिया में जाएंगे, अगर कोई फॉरेनर्स आता है, अगर आप भी किसी फ्रेंड हैं या कहीं आपसे पूछेगा इंडिया में आने के बाद, या लोग जो पूरा एक आध महीने फॉरेनर्स घूम रहे हैं उनको क्या लगता है, मोस्ट ऑफ देम कि मैंने पूरा वर्ल्ड घूम लिया। इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, आप 100-200 किलोमीटर जाएंगे कल्चर तो ऐसा ही चेंज होता है। आप यहाँ जाएंगे मुजफ्फरपुर, वहाँ भी कल्चर है, मिथिला और इधर दोनों का मिक्स है। आप आगे जाएंगे तो मिथिला का पाएंगे, उधर जाएंगे आप बेगूसराय की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा मक्की का पूरा का पूरा उसके ऊपर आ जाता है, आपको चेंज होते चला जाएगा। आप थोड़ा सा इधर जौनपुर चले जाइए तो जौनपुर में अलग है। बट इस डाइवर्सिटी के अंदर भी ये जो एक राष्ट्रवाद की कल्पना थी, भाव है जिसको कि अभी का सिचुएशन और भी ज़्यादा मजबूत करता है। ये जो वन इंडिया, इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। और बच्चों को जब शिक्षा देंगे कहीं भी ध्यान में रखिए ये बात, जाने अनजाने आप अपना मत बच्चों को बर्बाद करें। हमेशा सीबीएसई का जो एप्लीकेशन है, किसी बोर्ड का है, सीबीएसई के बोर्ड में हम लोग एप्लीकेशन है, किसी बोर्ड की है, आप ज़्यादा क्लास में मत बोलिए, बच्चों को बोलने दीजिए। आप एक थॉट दीजिए और फिर जितने फ्रेंड्स हैं उनको डिस्कस कर लीजिए और फिर उस डिस्कशन को चैनलाइज कीजिए फॉर द बेटर पर्सन, बिकमिंग द बेटर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के आगे जाना, क्योंकि टीचर को मैं देख रहा हूँ बहुत बायस है। मेरे बेटे ने, मेरे यहाँ सब नॉन वेज है, मेरे बेटे ने नॉन वेज खाना बीच में छोड़ दिया था क्योंकि उसकी टीचर नहीं रही है और वो ज्योग्राफी या जियोलॉजी पढ़ा थी, पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके ऊपर। वो तो उसमें और बताने का अलावा बोलेंगे इसमें ये मारे खाते हैं, इसमें ये होता है, वो तो अपना पूरा थूक दी। अब वो छोटा बच्चा था, सेकेंड क्लास में, तुम लोग आप अपने बाल पे जान मार के खाते हैं, छोड़ दिया। अब 5th क्लास तक वो खाएगी, ये नहीं कैसे में मुंह में लग जाता है, कुछ सुनता है, भी सलवार भी सीन हो गया। बट ये अपना मत से, क्योंकि बच्चे जो है फीलिंग है, आपको लगता है कि वो नहीं, वो खुद ही आपसे प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में आने लगता है तो माँ बाप की बात नहीं मानता है, वो टीचर को ज़्यादा मानता है। बोला नहीं टीचर ने ऐसे बोला था, आप लोग छोड़ घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल अदा कर रहे हैं बच्चे के लाइफ में, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में जब कभी भी आप ये यूनिटी डे और ये चीज़ें पढ़ाइएगा, प्लीज सरदार पटेल के जन्मदिन के ऊपर हुआ है, जन्मदिन को अलग रख करके यूनिटी को अलग रखेगा, बहुत जरूरी है। यूनिटी में ठीक है, यूनिटी हुआ है, एक अगर उनको एक तस्वीर का बोल है कि जितने भी रियासत थे उनको हम एक जगह ले गए। आप इतिहास पढ़े होंगे, तीन पार्ट में इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, यूनिफिकेशन कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले अशोक ने यूनिफिकेशन शुरू किया था, जैसे भी हो, उसमें धर्म से पहले युद्ध से, फिर धर्म से। सेकंड यूनिफिकेशन कब हुआ था? एंशिएंट हिस्ट्री में, जो मिडाइवल एंशिएंट में कनिष्क का जितना बड़ा साम्राज्य था यूनिफिकेशन में, इंडिया को उतना बड़ा नहीं, ईरान तक फैला हुआ था। थर्ड यूनिफिकेशन कब हुआ है? शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मिडाइवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी, आप जाके देखिए, कुछ बड़ा साम्राज्य। ये जो जब अंग्रेज आए हैं और जब मॉडर्न हिस्ट्री में उस समय जो बट गए थे, छोटे छोटे बटे हुए थे, जब उस समय लिया गया और उनको यूनाइट किया गया, दैट इज नॉट द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। आज चाइना बोलता है कि नहीं, चाइना सागर में मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, क्योंकि बात देखा कर रहा है कि डेवलप पीरियड का, एंशिएंट पीरियड का, ये सब तो मेरा ही है। आप ऑटम साम्राज्य के बारे में आप लोगों को सुना होगा, जैसे छोटा सा बात तुर्की बच गया। आप कभी मॉडर्न अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें जाके देखिए कि तुर्की इतना सो बचा है कि वो अपने इस्लाम का मानता है कि मैं यहाँ पे ये ऑटम साम्राज्य से कुछ ईरान फिर सब उसके पार्ट थे, खत्म हो गए, छोटा छोटा
बताया गया उसको वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये इंटरनेशनल चीजों के ऊपर मैथमेटिक्स वगैरह बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए करेंगे तो मैथमेटिक्स वगैरह सबसे वो एक दैट इज कॉल्ड हार्ड स्किल। मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी बराबर है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। तो उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस कीजिए कि एक अच्छा बनेगी। आज अगर आप जाके फेसबुक में किसी यूट्यूब को देख लीजिए, पॉलिटिकल इलेक्शन का टाइम है, लोगों की जबान आप सिर्फ देख लीजिए किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज जो मिक्स हो गई है। छोटा सा दूसरा किताबा है हमारे गांव में उनके लोगों को क्रॉस सरकार की साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों बहुत फर्क है। तो लोग यहाँ पे साक्षर हो गए हैं और वो अपने आप को शिक्षित समझ रहे हैं और पूरा फेसबुक पे रहते हैं, फेसबुक को भी ऐड मिल रहा है वो चला। इस चीज़ों के लिए आप लोगों के ऊपर मैं पहली बार बोला था लास्ट टाइम की इस बात की एज ए टीचर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इस जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलिएगा। एक ध्यान रखिएगा कि एक यूनिफिकेशन पटेल ने किया था, अब जो एक यूनिफिकेशन ये हट रहा है रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे, मैक्सिमम जो अब बन रहा है सिचुएशन वो है, देख रहा हूँ कुछ दशक से, एक दो दशक से रिलीजन के नाम पे। इस चीज़ को आपको खत्म करना है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your valuable words and your valuable time from your busy schedule. Thank you so much, sir. Now, it's time for prize distribution to the winners and participants. Now, I would like to request. Okay. Now, I would like to call our Principal Sir, Dr. D.N. Singh Sir, for the prize distribution ceremony. Sir, please. Give a big round of applause for our Principal Sir. इस प्रोग्राम के दौरान जो सबसे पहले प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता, तो उसका रिजल्ट आ चुका है और इसमें 3 प्राइज रखे गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड तो एक एक आए हैं, लेकिन थर्ड प्राइज में 2 लोग टाई हो गए हैं। और इस रिजल्ट को मैं अनाउंस करता हूं कि थर्ड पोजीशन पे 2 लोग हैं, एक हैं अंकिता कुमारी और अनुराग सिंह। प्लीज़ अपलॉज देम। सेकंड पोजीशन पे है सचिन कुमार और फर्स्ट पोजीशन पे हैं, आप लोग कोई गेस करना चाहे तो कर सकते हैं किनका था सबसे बढ़िया, या आपको लगा हो ऑडियंस। तो फर्स्ट पोजीशन पे है प्रियंका कुमारी। गिव हर अ राउंड। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देने के लिए रेस्पेक्टेड एडवाइजर सर, डियर उदयन मुखर्जी सर एंड आवर डायरेक्टर सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अंकिता कुमारी, अनुराग सिंह, आप दोनों स्टेज पर आएँ। आप दोनों भाषण प्रतियोगिता के तीसरे स्थान के हकदार बने हैं। अंकिता कुमारी, अनुराग सिंह, प्लीज। थैंक यू सर। वेल डन अंकिता, अनुराग। आगे के प्रोग्राम्स में आप लोग और भी अच्छा करेंगे। सेकंड प्राइज विनर हैं सचिन कुमार। सचिन कुमार स्टेज पे आए। सचिन कुमार सेकंड प्राइज विनर। वेल डन। अब जो पहला प्राइज है, नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रियंका कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर, नाउ दे आर इन सेकेंड ईयर। प्रियंका कुमारी के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा ताली बजाएं।
Well done, Priyanka. Thank you, sir. Please have your seats there. अब हमारा प्रोग्राम जो कि बहुत ही कम समय अवधि में तैयार किया गया था वो पूरा होने को है। सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय प्रशासन और KCT ग्रुप के डायरेक्टर श्री रंजीत कुमार सर को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद सर। रेस्पेक्टेड एडवाइजर सर, उदयन मुखर्जी सर, आप लोगों ने इस प्रोग्राम में वक्त दिए और अपने वक्त का मतलब जो अपने वक्त से निकाल करके हमारे लिए वक्त निकाले, इसके लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों ने जो वर्ड्स कहे हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही अनुकरणीय है। आप सभी लोगों ने, चेयरमैन सर ने भी जो भी बातें कही, बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जिस डायमेंशंस को उदयन मुखर्जी सर ने उठाया, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इसकी जो इमोशनल इम्पैक्ट है, जो फिलोसफिकल अप्रोच है, उन चीज़ों को हमारे एडवाइजर सर ने जो थ्रू आउट किया, उसके ऊपर जो प्रकाश डाले, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा था। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल अप्रोच, especially those who are going to teach in the schools as a teacher of social sciences. Be careful. Those are the gone days. वो समय बीत गया कि जो आप मर्जी पढ़ाते रहें, क्लास में पढ़ाते रहें। अभी सर ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही है कि फ्रांस में जो घटना घटी है, the teacher was just giving an example of intolerance, and that simple example, just showing a particular cartoon, made the entire world on fire. तो सोशल साइंस के टीचर्स या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स जो भी आप एग्जाम्पल्स देंगे, यू हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द थीम एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान की आत्मा कहती है, बस हम उतना ही जानते हैं क्लास के अंदर, ना तो हम आगे ना पीछे। एक इंडिविजुअल टीचर का अपना कोई ओपिनियन वहाँ पे क्लास में नहीं होनी चाहिए। स्पेशली सोशल साइंस के टीचर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डायरेक्टर सर ने बताई है। और इन चीज़ों को आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है वो समय आज की तुलना में और भी ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण हो सकते हैं। हमारे कॉलेज के बीएड के डीएड के सभी उन छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त निकाला और वो कम वक्त में भी तैयारी करके इसको सफल करने का पूरा प्रयास किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो बच्चे प्रॉमिस किए थे आएंगे और वो नहीं आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम एक दिन तो वो आए हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग के सभी स्टाफ जिन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर सारा चीज़ पूरा किया और जैसे तैसे हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। मुझे बहुत खुशी है कि हम इसमें सफल हो गए, हमने कर लिया। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। के लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी है, तो आप सब वो ज़रूर करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बस 5 मिनट आप हमें और दें और धैर्य से वो रिफ्रेशमेंट ज़रूर ग्रहण करें।